हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Evolution of the landform due to the internal force. There is the most important chapter and the most important topic arrive here, internal force. What do you mean to the here internal force here? The internal force here, the variety in the types of landform on the earth is the end of result of two types of force. The working as a stimulus as a continuously both inside and outside. It is a surface. The force which is the originate from within the earth as a crust or inside the earth are called internal and the endogenetical force. The source of providing then there is energy or the internal heat. The chemical reaction taking place within the earth and the transfer of the rock materials on the earth as a surface by internal their external force. Not internal, there is a external force. Their rock materials on the earth surface by the external force. And the next here, the earth movement. What do you mean to the here earth movement? Though we are generally here, a people using to face like a hard as a rock and as stable as the earth, but these phases are not true. Neither the earth is stable, nor the rock of which is the crust is made are so hard. Since the origin of the earth, there has been a major change in the distribution of the continent and ocean, the land and the oceans. The earth has experienced a innumerable earth is a movement which have a both about vast change in the surface. The sum of their example of this movement are the submergence of forest in Mumbai is a Harobos and the Mahabalipuram's temple now standing on the sea and the change in their ground level in the Rana of Kocha of India. The force working from the inside the earth in the turn case of movement in the crust. There is the most important here, the force working from inside the earth in the turn case of movement in it is a crust. And this movement that is called is the earth movements. There is the most important, this movement are called earth movements. Since and this movements is a contain to arise from the moment of the actual structure of the earth is a crust. They are also called to the tectonic moment. Tectonic moment is also already discussed the previous chapter. The word is a tectonic is derived from the Greek word tecton, which is mean to the builder, and the word is a true to it is a meaning because these are there are is a moment which are the constructionally is have and has been to responsible for the buildings of different types of land form. The figure has shown the next our topic, but it is a quite evident that is a physiographic of the Indian was entirely different about a 60 million year ago. The vast Tansis Sea is a excited in that is the area where to the Himalayan range and Indo is a Ganges plan exit. The Thames as a sea was gradually filled up there are sediments and the both there by a river from a surrounding regions. And later the sedimentary rocks are formed in there is a beds of this sea is gradually emerged in form of the Himalaya in the north and Indo is a Ganges plan to it is a south. Here show the diagram of two. There is a 6 million year ago and the present configuration. There is a most important. The first here diagram is a 60 million year ago. The India Gangotris and there is the Indian draft and the Thames Swiss and Angora. A present configuration here the Himalaya in India and the Indian collide. There is the most important and difference for there is a diagram. The Malabar Plateau and the Deccan Traps of India is the Columbia and the Shrek of River is the plateau of North America. The Canberra is a plateau of the Australia and Parana and there is a Patagonia plateau of South America were also formed by the solidifications of the molten lava which has escaped from to the earth as an entire to its surface at a different geologically time. And there is the most important, the evidence of clearly show that is the surface of our earth, the never is remained that the same as it is today and the neither it will be the same of future.
Then here the present of most important fact here a movement causing by the internal and endogenical force and affecting the earth as a crust are known as the earth movement. You know that the earth movement, the movement is causing by internal and endogenical force affecting the earth as a crust are known as the earth movements. And the next here earth movement are also called is a tectonics movement as they help in our buildings, there are relief features on Earth as a crust through the subsequently are stimuli undergoing to the changes. There is a most important here point. यहाँ पर जो हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक बलों की जो है परिणाम स्वरूप भू आकृति का जो विकास हुआ है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके सिलेबस में अगर ये जो है पॉइंट है। इसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो है आंतरिक बल। देखिए आंतरिक बल का क्या अर्थ होता है ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा कि आंतरिक बल होती क्या है। पृथ्वी पर भू आकृतिक विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। यानी देखा जाए तो जो है आकृति यानी पृथ्वी की भू आकृति की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को जो है आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं। यानी आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं और इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा जो है पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो है शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना एक स्वाभाविक बात है। तो कई मानने में जरूरी भी है कि इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के रूप में पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना स्वाभाविक बात है। यदि बात हम करें यहाँ पर दूसरी पॉइंट की तो देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो दूसरी पॉइंट आपके समक्ष है वो है पृथ्वी की हलचलें। देखिए पृथ्वी में हलचलें होना स्वाभाविक बात है जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं, जिसको अर्थक्वेक आप सामान्य रूप में कहते हो। लेकिन बात यहाँ अगर हम पृथ्वी की हलचलों की बात करें तो सामान्यतः हम लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पृथ्वी जो है शैल की तरह ठोस है, यानी काफ़ी जो है क्रस्टेड है तथा ये स्थिर है। लेकिन यह सत्य नहीं है, न तो पृथ्वी स्थिर है और न ही शैल जिसमें पृथ्वी की बाहरी परत बनी है उतनी ठोस है। पृथ्वी के जो है उत्पत्ति से लेकर आज तक जो है महाद्वीपों और महासागरों के जो स्थलीय और जलीय भावों के विवरण में भारी परिवर्तन होते हुए नजर आया है। यानी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। पृथ्वी पर असंख्य भू हलचलें हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी में हलचलें होना एक स्वाभाविक बात है जिनके परिणाम स्वरूप इसके धरातल पर भारी परिवर्तन भी हुए हैं। यानी पृथ्वी पे हलचल होगी तो इसका मतलब है कि इसके धरातल में बहुत से परिवर्तन होंगे। ये तो आपको भी पता है। अगर मान लीजिए अगर आप कहीं भी देखते होगा कि कोई हलचलें होती है तो कुछ ना कुछ बदलाव होना एक स्वाभाविक बात रहेगी। कहते हैं मुंबई में अगर पोताश्रय में जो है बनिए भाग का जो धंसना और महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री जल में होना तथा कच्छ के रण की भूमि के स्तर में कुछ परिवर्तन भारत में घटने वाली इन हलचलों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में आप समझ सकते हो कि ये हलचलें का कुछ एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष है। यानी अगर मुंबई की हम बात करें जिसमें बनिए भाग का जो है धंस जाना, आखिर क्यों धंसी है? महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री में जल में होना ये भी बात जो है दर्शाती है कि पृथ्वी में हलचलें होती है। और कच्छ के रण की भूमि स्तर में हुए परिवर्तन ये सबसे हलचलें के जो है सबसे अच्छा और सबसे विशिष्ट यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इसकी बाहरी परत में हलचलें सदैव पैदा होती रहती है और इन हलचलों के पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। यानी देखा जाए तो पृथ्वी में सदैव ही हलचल होता रहता है और इन हलचलों के कारण कई जो है क्षेत्र में बदलाव होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये हलचलें पृथ्वी की बाहरी परत की वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तन से संबंधित होते हैं या पैदा होती है। अंततः इन्हें जो विवेतनिक हलचलें भी कहते हैं। अगर हम विवेतनिक की बात करें तो हम प्रीव्यू चैप्टर में भी विवेतनिक के बारे में विस्तारपूर्वक जाने थे। कहते हैं टेक्टोनिक शब्द जो है ग्रीक शब्द के टेक्टोन शब्द से बना है जिसका अर्थ ही होता है बनने वाला। यानी टेक्टोनिक्स का मतलब ही होता है बनने वाला। यह शब्द अपने में पूर्ण सार्थक है क्योंकि पृथ्वी की ये हलचलें वास्तव में निर्माणकारी है, क्योंकि इससे बहुत चीज़ों का निर्माण भी होता है तो कुछ चीज़ों का विनाश भी होता है। कहते हैं हिमालय अगर आप देखे होंगे तो अभी ये भी हम हिमालय का निर्माण पहले नहीं था लेकिन अब जो जाके हिमालय का निर्माण हुआ है।
इनके द्वारा ही पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के भूआकृति का निर्माण होता है, जो एक स्वाभाविक बात है। और ये हलचलें अपने जगह पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान भी देते हैं। आगे जो है हम चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत का स्वरूप जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व पूरी तरह से भिन्न था। और आज यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी और गंगा सिंधु का जो मैदान है, वहाँ पर जो है टैथिस नामक सागर हुआ करता था। और टैथिस सागर जो है निकटवर्ती स्थल प्रदेशों से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों के क्रमिक निष्पेषण से भर गया। और बाद में थैलिस सागर के तल में बनी जो है सारी शैल से हुए क्रमिक उत्थान से जो है उत्तर में हिमालय तथा उसके दक्षिण में गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय का निर्माण भी इसी बात का सुचालक था कि यहाँ पर जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व देखे तो हिमालय यहाँ पर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका हिमालय का निर्माण हुआ और आज हिमालय जो है सबसे ऊंचे में से गिना जाता है। यहाँ पर जो है 2 चित्र दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला चित्र की हम बात करें जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारत का, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि भारत जो है गोंडवाना के साथ जुड़ा हुआ है और टैथिस सागर है, अंगारा दिख रहा होगा भारत का प्रभाव। तो ये चित्र भी मानचित्र भी जो विपरीत है, बहुत ही अलग है, जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व के जो है यहाँ पर मानचित्र है। अगर हम वर्तमान की मानचित्र देखें तो आप देख सकते हो कि हिमालय जो है भारत यहाँ दिख रहा होगा, भारत की जो है टकराव जो भी दिख रहा होगा। तो ये आज के समय में पुराने समय में बहुत जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। भारत के मलावर पठार का जो है दक्कन टेप उत्तरी अमेरिका में जो है कोलंबिया तथा स्नेक नदी के पठार हैं। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है क्लम्बरेल्स पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना और पेंटागोनिया पठारों का निर्माण भी विभिन्न जो है भूगर्भिक कालों में पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकले पिघले हुए लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। यानी इन सब का निर्माण जो हुआ है लावाओं को जो है ठोस होने के कारण ही संभव है। इन्हें उदाहरण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का जो धरातल कभी भी ऐसा नहीं रहा होगा जैसा कि वह आज है, और यह भविष्य में भी ऐसा रहेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं सभी चीज़ों का बदलने का एक जो है प्राकृतिक का नियम है और ये बदलते ही रहते हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें 2 बातों की जो हमने यहाँ पढ़ने से हमें स्पष्ट हुआ है, तो वो यही बात हो सकती है कि ये हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी के प्रभावित करती है, पृथ्वी की हलचलें कहलाती है। कई बार एग्जाम में आया था कि पृथ्वी की हलचल से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो कि वह हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी को प्रभावित करती है, उसे हम पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। दूसरी बात उभर के जो यहाँ सामने आया है वो ये आया है कि पृथ्वी की हलचलों को जो है विवर्तनिक हलचलें भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल पर जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा भौतिकीय लक्षणों का निर्माण करती है, जो कि कई मायने में इंपॉर्टेंट भी रहता है और ये जरूरी भी है। द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ मोमेंट। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइव हियर, अ क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ मोमेंट। The earth movement are classified on the various basis of the time taken by such a movement, and they are divided into the further 2 types. There is a slow movement and sudden movement. There is a most important moment here, slow movement and sudden movement. The first here is a slow movement. Where is the slow movement here? The movement which is a bearing about the change on the earth as a crust very gradually, or slowly taking to hundred and thousand of years, and which the cover a period is a much longer than to the human lifespan, are called slow movement. There is the most important here definition in the slow movement. The moment which is varying above the change on the earth as a crust very gradually or slowly taking to the hundred and thousand of years, and which is the cover a period is a much longer than to the human lifespan, are called slow movement. And this movement act on their earth as a crust others are vertically and horizontal. There is a movement act on the earth as a crust is the other vertically and horizontally. The acting there vertically there is a case of the uplift and the subsideness of on the part of the crust. The rise of the sea which is along to the Kathawars and the coastals of the India which is the contain their shells of the marine life, and clear point out that this is the coastal was once below there is a sea level. Similarly, arise to the beaches are there found in the Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu along the eastern coastal of India as well. These beaches has been to the
is uplifted to be height and ranging between to the 15 to 30 meters above the mean sea level. On the other hand, there is a nearest is example of the submergence and such as the presence of the peats at the lateral and the beds found below to the sea level in the Sundarban Delta and the submarine forest in the Tiruvallur in Tamil Nadu, and there is a submarine forest on the east coast of Mumbai Island. What do you mean to the sudden movement here? The contrary is to be a slow movement. There is a content of movement which is the varying about the abrupt and the change in the crust. The examples of such movements are volcanic eruptions and the earthquake. There is change both about thereby. These two events are so sudden that the course of the rivers is undergoes a change, and the lava flow to the result. In it is a formation of a mountain, upland, and there is a plateau as a matter of days. The landslides occur to the mountainous resident due to this movement. There is a most important fact here. There is a most important point also. Sudden movement is a bearing about the erupt and the change on the earth as a surface, and volcanic is eruptions and the earthquake are the result of sudden movements here. And the movement which are bearing change are slowly and gradually over a long period of the time are known as a slow movement. There is a definition. An uplifted here is a submergence and the subsidence of the earth as a crust are result of slow movement. There is a most important here. अगला जो यहाँ हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण आया है पृथ्वी की हलचलों का वर्गीकरण। देखिए जो पृथ्वी में हलचलें होते हैं उसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो देखा जाए तो उसको दो भागों में विभक्त करने का प्रावधान है। पहला तो यही होता है कि पृथ्वी की हलचलों के समय के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो होगा मध्य हलचलें यानी जो है स्लो मूवमेंट, और एक होगा आकस्मिक हलचलें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष यही दिख रहा है कि मध्य हलचलें क्या होती है, आखिर जो मंद हलचलें वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम मध्य हलचलें की बात करें तो उस कहते हैं भूपट्टी पर कुछ परिवर्तन जो है इतने क्रमिक और मध्य होते हैं कि उनमें परिवर्तन सैकड़ों या हजारों वर्ष के बाद देखने को मिलता है। कहते हैं इतना आप आसानी से नहीं देख सकते बदलाव को। ऐसी हलचलें जिनका समय मानव जीवन से भी अधिक लंबा होता है मध्य हलचलें कहलाता है, यानी ये बहुत ही स्लो मोशन में होते हैं, बहुत ही धीरे होते हैं। ये हलचलें भूपट्टी पर जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में हो सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकली हो सकते हैं। कहते उसे हम ऊर्ध्वाधर की हलचलें भूपट्टी में धसाव या उभार देखने को मिलता है। भारत के अगर हम काठियावाड़ तट पर उठे हुए समुद्री तलों में पाए गए समुद्री जीवों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तट कभी समुद्री जल के जो है नीचे था, यानी उनके सबों से ये पता लग जाता है, अफसोसों से ये पता लग जाता है कि पहले समुद्री तट जो थे काफ़ी नीचे थे। इसी प्रकार के उठे हुए समुद्री जो है तट भारत के पूर्वी तट के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यह तट समुद्री जल सतह से जो है 15 से लेकर 30 मीटर तक जो है ऊपर उठा दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम भूपृष्ठ के धसाव के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सुंदरबन के जो है डेल्टा में जो है पीटी और जो है जो लिग्नाइट जो सतहों की जो उपस्थिति तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली में तथा जो है मुंबई द्वीप के जो है पूर्वी तट पर बनों का समुद्र में डूब जाना, ये सब जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आकस्मिक हलचलें। देखिए आकस्मिक हलचलें होती क्या है, कहते हैं मध्य हलचलों के विपरीत कुछ हलचलें ऐसी होती है जो भूपट्टी में जो है शीघ्र परिवर्तन ला देती हैं। जनरली सी बात है कि ये हो जाते हैं बहुत ही, जैसे कि आप एग्जाम्पल जानते ही हो कि ज्वालामुखी है, भूकंप, ऐसी हलचलें के उदाहरण है जो कि बहुत फास्ट होते हैं और बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल जाते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ। इन दो घटनाओं द्वारा परिवर्तन इतने आकस्मिक होते हैं कि नदियों के मार्ग बदल जाते हैं तथा लावा के बहने तथा जमने से पर्वत उठे हुए भूभाग व पठारों का निर्माण कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। और इन हलचलों के परिणाम स्वरूप जो है पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन भी होता है। तो इसे हम आकस्मिक हलचलें कहते हैं जो कभी भी हो सकता है, शीघ्र होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ज्वालामुखी है और भूकंप है। अगर बात यहाँ पर हम करें इंपॉर्टेंट बात की तो आकस्मिक हलचलें जो है भूपट्टी में तत्काल परिवर्तन लाती है, और दूसरा जो है ज्वालामुखी तथा भूकंप जो है आकस्मिक हलचलों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से।
Here the most important chapter, evolution of the landform due to the internal force. The important here topic arrive a vertical and horizontal movement. What do you mean to the here a vertically and horizontal movement here? The slope movement can be further be divided into the vertically and horizontal movement on the basis of the uplifted and subsidence of the part of the earth's surface. That is the most important. The first here a vertically movement. What is here is the vertical movement here? Here the vertical movements originate from to the center of the earth and the effect it is a surface. The consequently is a large scale uplifted or subsidence of a part of the earth as a surface are take place. And this movement are slow and the varied spread and do not a varying change in the horizontal rock strata. And this movement are mainly is associated with the formation of the continent and plateaus. Here these are the known as the continent are the buildings or the plateau is the buildings of movement. Besides this is a movement are also is called to the epi is or genetical movement. There is a epigenetical movement here. The epiros is a Greek language means a continent. In the preview lesson on the rock, you have studied about that is a sedimentary rocks are deposited and formed into oceans and seas. There is a presence of this sedimentary rock is widely spread in a continents that clearly show that this where the uplifted are arises to form a continents. The contrast to the above, there are the continuous of evidence of the submergence is the buildings and the river valley and cities due to the subsidence into the sea. The sum of such an example include the submarine ascent and building in the Mediterranean and the Crete of Iceland and the ancient city of the Dwarka and the Saurashtra, India. Saurashtra, India is this is a change the clear point the downward to moment of the earth surface. The next here is the horizontal movements and there are a force which act on the earth crust from side to side. And the horizontal is a tangential and the natural there is case a lot of descriptions in their horizontal layer of the straw as they do is involved a good deal of the compressions and tension of the preexisting rock sign this force act horizontally are the tangentials to be earth as a spherical surface and these are known as the horizontal and tangential movement. There is a most important and we can divide them into two types. There is a first year force of the compressions and second year force of tension. There is a two types here. The first here is a force or compression that is the most important involved to the pushing of the rock stress against a hard plane from one side from both sides. To understand there is a working, let us take the piece of the cloth and spread it on the table. Push the cloth with your both hand to about to the center and it will be form a brinkless as a rising up to their down of folded and like views at the rock stairs also is bent in the same fashions and when to the force of compressions act on them from opposite direction. In this way, the compressional is a force lead to the bendings of a rock layer and thus the lead to, to the formation of the fold mountains. In them, to rock strata is a primarily of the sedimentary rock get folded into the wave like a structure, and this process of the bendings of sometimes is a warpings and twistings of rock strata in the refer to as they are folded. And there are folded are called to the anticlinals and down folded is called to the syncline. Here show this diagram the earth crust before and the after the folding. There is the most important here a comparison. There is the most important first diagram show here and second here is a shortened crust and the cyclines and endocyclines there is a present. There is the most important diagram show their earth crust and the before and as a after folding. The Himalaya, the Rockies, and the Andes, the Alps, as other of this short has been formed by the computational force, resulting the mountain is built on their large scale, and this is called to the orogenical movement. That is the most important. The important also there is a box. There is a most important here
A horizontal movement are produced by the force of compression and tension. The folding is the bending of the rock slab due to the compressions, and the next layers upfolded are called anticlines and downfolded syncline. And folding and gigantics is a scale result in a mountain or building is a movement generally is referred as a horizontal. There is the most important here. The next here is the force of tension. There is the most important here are the produced when this force are working horizontally in a opposite direction away from a given plan to point under the operation of tensions of tensional force. The rock stairs is broken or fractured as a result of cracks and fracture of develop. The displacement of the rocks is upward to the downward from their original position along such a fracture is the term to the fracturing. And there is a lines along which is the displacement of the fracture is a rock stair take place is called the fault line. Like which the plan along which is the displacement of the rock stairs take place is known as a fault plan. And the force of tension produces a fault. There is the most important here. The force of tension produces a fault, and this plan along which is the displacement of fractures rock stair like of place is called it's a fault plan. Here show the most important diagram here of fault. There is a fault here is up to one side tension fault plan and fault scraps and down to one side. There is the most important diagram show here of fault. The force of the compression gives rise to the operation of the force of tensions. Thus, the fault are closely related to the formation of the occurrence of faults. It is an impulse that is a faulting generally lead to are the accompanied by the fracturings and faulting in a rock stair. The faulting result in the formation of well-known relief of fractures such as the rift and the valley and the block is mountains. A rift is a valley is formed by the seekings of a rock stair lining between two almost parallel faults. And the classical example of the rift is valley is the world include to the midland and valley of the Scotland. There is a Thames Valley is the valley of the Nils. There are Dead Sea is the basins and the Great Rift as the valley of the East Africa and the comparisons of few lakes of these regions. Some geographers are there is opinion that the Narmada and Tapti Valley are also rifted valley. The coal is a deposit of the Damodar is a valley is said to be originally is laid in their Sinaitic through their resembling and Rift Valley. They here are Rift Valley and the Block Mountain here. There is a most important shown in this diagram. The Forest Valley is a valley, right left valley and they here. And Forest is the most important is a Rifted Valley is a thought there is a steps and parallel well along the fault line. Such as a valley is also called a Gardben. Gardens here, a grave is a valley may be also formed by upliftment of two blocks along their fault line. And these uplifted blocks are called Horstal and Block Mountains. The well now example of Horstal and the Wasteland and their Black Forest Mountain on the both sides of the Raman Rift and the valley in the Plateaus and the Placentines and the Transjordan. That is the most important. The scalp pavement is a scalp face and the she in the figure. There is a characteristics of feature of the right Rift Valley and the Horst. There are very steps as have highly is a precipitations as a slopes in a continuous line of facing one direction. The scalp pavement of the Western Ghat once looking their Arabian Sea and the thought to be the result of the faulting. There is a creeping of with the Himachal mountain are also ascribed to be a faultings and formation of the narrow Narmada Valley. Here the important point arrive the faulting lead to the formation of the Rift Valley hostel and is a scalp pavement. And the second Rift Valley is a trough and with the step parallel bell among to the fault line. The next year a horizontal is a uplifted land marks with a step and slow on the both the sides
On the scrape pattern is very step, slow is the continuous line along their fault. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर था पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो विकास, इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों के विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो कहते हैं मध्य हलचलों के पृथ्वी के जो है धरातल के किसी भाग के ऊपर उठने या धंसने के आधार पर जो है पुण्य जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों में विभाजित किया जा सकता है। यानी इसको दो भागों में विभाजित करने का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर हलचलें, यानी ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल के पृथ्वी केंद्र से उत्पन्न होती है और इसके धरातल को काफ़ी प्रभावित भी करती है। इसलिए इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर जो है धरातल के भूभाग जो है ऊपर उठ जाते हैं अथवा नीचे धंस जाते हैं। ये जो है गतियाँ प्राय इतनी मद और विस्तृत होती है कि पृथ्वी के क्षैतिज शैल जो है स्तरों के जो है स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ये गतियाँ मुख्य रूप से महाद्वीपों तथा पठारों के निर्माण से संबंधित होती है। अंततः इन्हें महाद्वीपीय निर्माणकारी अथवा पठार निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी और पठार निर्माणकारी हलचलें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले पाठ में आपने शैलों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जाना है और समझा भी होगा। अगर नहीं वीडियो देखा है तो देख लेना, क्योंकि इसमें हमने पिछले चैप्टरों में शैलों की जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। उसके निर्माण में किस तरह के जो है इसका उपयोग है, सारे चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो देखना मत भूलना। कहते हैं अब सारे शैल महासागरों तथा समुद्रों में लाए गए पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं और ये शैलें महाद्वीपों पर विस्तृत रूप से पाई भी जाती है। इस तथ्य से यह पुण्य स्पष्ट हो जाता है कि इन शैलों के ऊपर उठने में से द्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। देखिए, जब शैल जो है ऊपर की तरफ उठता है, विस्तृत होता है, तो जनरल सी बात है कि इनके ऊपर उठने की वजह से जो है इन महाद्वीपों का जो है निर्माण हुआ है। कहते हैं ऊपर के वर्णन से विपरीत ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें जो है भवन, नदी, घाटी या शहर समुद्र में भूमि के धंसने से डूब गए हैं। कहते हैं मध्य सागर की बात करें तो इसमें क्रेट द्वीप में बने प्राचीन भवन तथा भारत के जो है सौराष्ट्र का प्रसिद्ध प्राचीन नगर द्वारिका समुद्र में डूबे हुए हैं। और इस प्रकार कुछ उदाहरण है। ये परिवर्तन पृथ्वी के धरातल के नीचे धंसने की गति के पूर्णता स्पष्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि द्वारका जो है अभी भी पानी के अंदर जो है साफ दिखता है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो है समय के साथ परिवर्तन होने का एक संकेत मात्र है। कहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ने में कि इसमें क्या हमने पढ़ा है, तो ये बात साफ हो जाता है इन पॉइंटों से कि बड़े पैमानों पर धरातल के ऊपर उठने या धंसने से जो है महाद्वीप, पठारों तथा महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि ऊर्ध्वाधर हलचलों के जो है महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं, यानी हलचलों के महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचलें भी हम कह सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा हमारा प्रकार आता है क्षैतिज हलचलें। देखिए, क्षैतिज हलचलें जो होते हैं कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा में जो है दूसरी दिशा की ओर अथवा दोनों दिशाओं में काफ़ी जो है प्रभाव डालते हैं। यानी देखा जाए तो ये कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, कभी इस दिशा में प्रभाव डालती है, यानी दोनों दिशाओं में जो है प्रभाव डालने का इसका प्रावधान है। और इस कारण जो है भूपृष्ठ के क्षैतिज शैलों स्तरों में जो है अत्यधिक परिवर्तन आ जाते हैं। यानी इनके जो है क्षैतिज में जो है शैलों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और इन बलों के कारण जो है पूर्व स्थापित शैल स्तरों में दबाव या खिंचाव पैदा हो जाती है। काफ़ी दबाव और खिंचाव पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये बल गोलाकार पृथ्वी के स्तरों में क्षैतिज अथवा स्पर्श रेखा की दिशा में प्रभावित होते रहते हैं। अतः इनको क्षैतिज हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज हलचलें कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होगा संपीड़न बल और दूसरा जो होगा तनाव बल। यानी इसको क्षैतिज हलचलों को हम दो भागों में बांटने का प्रावधान है, एक संपीड़न बल और दूसरा जो है दोस्तों तनाव बल। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संपीड़न बल। देखिए, संपीड़न बल क्या होती है। कहते हैं वह है जो शैल स्तरों को एक ठोस तल जो है तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं से दबाव डालता है। यानी ये स्तरों को जो है शैल स्तरों के जो होती है उसको एक जो है कठोर तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं में जो है दबाव डालते हैं। उनकी क्रियाओं को समझने के लिए आप एक कपड़े का टुकड़ा लो, यानी एक कपड़े का टुकड़ा हम ले सकते हैं और उसे मेज पर फैला लेते हैं और इस कपड़े को अपने दोनों हाथों से उसके
बीच की ओर दबाव डालते हैं तो कपड़ा ऊपर के नीचे की मोड़ पड़ जाएंगी। ये तो जनरली आपने देखा भी होगा, नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट आजमा भी सकते हो कि अगर दोनों कपड़ा लिया, अगर बीच में हम उंगली डालते हैं तो हल्का सा उठना स्वाभाविक बात होती है। शैल सतह भी कपड़े की भांति मुड़ जाते हैं और इस प्रकार जो है संपीड़न बल जो शैल सतहों में मोड़ डाल देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जो है वलीय पर्वत का निर्माण हो जाते हैं और जिनमें जो है सारे शैल जो है लहरों की भांति मुड़ जाते हैं। और इस प्रकार शैल की जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन के नाम से जानते हैं, यानी शैलों के जो है मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलयन कहते हैं। ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को जो है अपनित तथा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को जो है अभिनिमित कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को हम अपनति कहते हैं अथवा नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को हम अभिनति कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इस बात को जो है प्रमाणित करेगा। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और एक के साथ दूसरा भी डायग्राम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वलयन से पूर्व तथा वलयन के बाद भूपट्टी। देखिए पहले तो संपीड़न हो रहा था इसमें, अब इसमें क्या हुआ, दबाव डला, जिसके वजह से क्या हुआ, अभिनति बनी। अभिनति का मतलब नीचे दिखाया गया है और अपनीति मतलब ऊपर की उठना। कहते हैं अगर एक क्षेत्र में दबाव पड़ेगा तो दूसरा क्षेत्र जो है ऑटोमेटिक जो है ऊपर उठ जाएगा। तो यही बात हमने जो है टेबल वाला जो कपड़े रख के जो है हमने एक्सपेरिमेंट सोचा था, आपको कहा भी गया था करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट इसी बात को दर्शाता है कि अगर आप एक तरफ जो है दबाइएगा तो दूसरी तरफ उठ जाना एक स्वाभाविक बात रहेगा। और इस डायग्राम से भी आपको कई मानने में क्लैरिटी आपको हो जाएगा। कहते हैं जब वलयन विस्तृत पैमानों पर होता है तो यह पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से संबंधित होता है। संसार के अधिकांश महान पर्वतमालाएं जैसे हिमालय हो जाए, रॉकीज हो जाए, एंडीज हो जाए, अल्प्स तथा इसी प्रकार के अन्य पर्वतमालाओं का निर्माण संपीड़न बलों के विस्तृत पैमानों पर हुई प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप ही हुआ है और इन गतियों के जो है पर्वत निर्माणकारी हलचलें के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बात को अगर प्रमाणित करने की कोशिश करें तो दो बात तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया है कि क्षैतिज हलचलें संपीड़न तथा तनाव बलों से उत्पन्न ही होती है, यानी क्षैतिज हलचलें जो होती है सदैव संपीड़न तथा तनाव बलों के कारण ही उत्पन्न होती है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गया है कि संपीड़न द्वारा शैल सतहों में मोड़ पड़ने के बल्ले कहते हैं, यानी संपीड़न द्वारा शैल सतहों में मोड़ पड़ने को हम क्या कहते हैं, वलयन कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टाइप है तनाव बल। देखिए तनाव बल तब पैदा होता है जब शक्तियों को दो विपरीत दिशाओं में जो है धरातल के समांतर कार्य करती है, अर्थात जब शक्तियाँ किसी दिए गए बिंदु या तल के दोनों ओर कार्य करते हैं तो तनाव पैदा होती है। जब तनाव बल अधिक तीव्र होते हैं तो शैल सतहों यानी परतों में दरार पड़ जाती है और ये टूट जाती है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि दरारों या भ्रष्ट पैदा हो जाते हैं। जब दो दरारों के बीच के शैल ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो इसे हम भ्रंशन कहते हैं, यानी इसको भ्रंशन के नाम से जाना जाता है। जिस रेखा के साथ टूटे हुए शैल विस्थापित होते हैं अथवा खिसकते हैं उसे हम भ्रंश रेखाएं कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें तनाव बलों को हम कारण जो है भ्रंश बनते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे शैल जो है खिसकते हैं उसे हम जो है भ्रंश रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको भ्रंश जो है डायग्राम दिखाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भ्रंश दिखेंगे और उत्प्रेक्षित भाग दिखेगा, तनाव दिखेगा और दक्षिण भाग दिखेगा। तो ये काफ़ी डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं संपीड़न की शक्तियों के कारण तनाव की शक्तियां सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार जो है भ्रंशों का निर्माण जो है मोड़ों के बनने की प्रक्रिया के साथ होती है। और इसका तात्पर्य यही हुआ कि वलयन की प्रक्रिया ये शैलों के परतों में भ्रंश निर्मित होते हैं और यह टूटती है, यानी ये सदैव छोटी मोटी टुकड़ाओं में जो है धीरे धीरे टूटती है। बात यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कोई चीज़ पर दबाव पड़ेगा तो उसका टूटना एक स्वाभाविक घटना मानी जाएगी। कहते हैं भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण दरार जो है घाटियों तथा खंड पर्वतों का निर्माण हो जाती है। तब दो अलग अलग समांतर दरारों के बीच स्थिर शैल स्तर जो है नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो ये दरार जो है घाटी का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम चित्र में भी देखेंगे संसार की प्रमुख दरार घाटियों में स्कॉटलैंड की जो है मध्यवर्ती घाटी और राइन नदी घाटी, नील की घाटी, मृत सागर बेसिन तथा जो है पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी जो है जिसमें इन क्षेत्र की कुछ झीलें शामिल है जो इसके अंतर्गत आता है। कहते गणना किया गया है, इसमें सारी बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है।
कुछ भूगोलवेत्ताओं ने ये नर्मदा तथा ताप्ती घाटी को भी दरार घाटी मानते हैं, यानी सबकी अपनी विचारधारा है। इसलिए जो है बहुत से जो है भूगोलवेत्ताओं ने ये बात साफ किया है कि नर्मदा और ताप्ती घाटी भी इन्हीं दरारों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। दामोदर नदी घाटी की जो है कोयला निक्षेपण आरंभिक रूप में एक अभिनेत्रित जो एक दरार घाटी से मिलती जुलती है में काफ़ी जमाव हुए बताए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दरारी घाटी तथा खंड पर्वत यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसका निर्माण जो है संभव हुआ है। यहाँ रिफ्ट घाटी दिख रहा होगा और बृहस्पति पर्वत और बृहस्पति पर्वत भी दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए कोई चीज़ में अगर दबाव पड़ेगा तो जनरल सी बात है कि उसका निर्माण जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो ये साफ यहाँ पर चित्र दर्शाने की कोशिश किया है कि दरारी जो है घाटी तथा खंड पर्वत के कारण जो है कई चीज़ों का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है। कहते हैं दरार घाटी जो है भ्रष्ट रेखाओं के सहारे बनी दो समांतर दीवारों के बीच में ये धंसा हुआ होता है, भूभाग होती है और इस प्रकार की घाटी को जो है ग्रेबन भी कहते हैं। दरार घाटी का निर्माण दो दरारों के बीच वाले स्थल खंडों के ऊपर उठने से भी हो सकता है, यानी दो दरारों के जो है खंड को ऊपर उठने से भी होता है और इन पर उठे हुए खंडों को जो है हस्ट या खंड पर्वत भी कहते हैं। राइन नदी के दोनों किनारों के साथ जो फैले जो है बस जेस तथा ब्लॉक फॉरेस्टेड पर्वत तथा फिलिस्तीन तथा ग्रैडेन के पठार खंड पर्वतों के प्रसिद्ध उदाहरण में से एक माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर हम कागर दरार घाटी तथा खंड पर्वतों के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वो एक दिशा में फैले हुए तीव्र एवं खड़े किनारे वाले ढाल होते हैं। अरब सागर की ओर के दक्षिण जो है पश्चिमी घाट के कगार, विंध्याचल के कगार और नर्मदा नदी के जो भ्रषण का ही परिणाम होता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ है और पर्वत के निर्माण में जो है किस प्रकार के दबाव जो है यहाँ पर कार्यरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अराइव हियर और volcanoes. Volcanoes here is the most important topic. Have you ever to seen an active volcano? Even if you have never to seen a volcano, is you have probably seen to the picture of film or everything to the volcanoes. This a conical is a form or example of the landform, and we will be study in this chapter. A volcano is the event or their opening in earth as a crust through which is the molten rock material. And rock fragment is the ash and the stems of the other hot gases are emitted slowly or forcefully in the course of eruptions. And these materials are thrown out from the hot interior of the earth to the surface. Such events to the openings and occur in those parts of the earth crust and where rock is still are relative to the beak. Here show the most important diagram is the volcanic cone. There is the earth and the crust and the pipe and ducts and the ash layer. The lava is a flow here and the subterranean is craters and the conlet and craters is the most important diagram here. You may be as wondering and the why such eruptions take place. Actually, volcanoes are evidence of the presence of the intense heat and pressure exerting within the earth. Hot molten rock materials and then there is solid outer crust is known as the magma. What is the magma here? The hot molten rock materials when their solid outer crust is known as a magma. When this magma is thrown out from the magma chamber to the earth's surface is known as the lava. There is a figure 4.5. There is a magma and the gases stored within the earth's surface keep a try to come out to be surface through all lines of weakness anywhere in the crust. The thermodynamics is a force created by the magma and it is a gases creates as a hole in the crust and the lava is spread out on the surface along with the ash and fragmented rock material. And the process by which is a solid liquid and the gaseous materials escape from the earth as interior to the surface of earth is called volcanism. Two important things here arrive here. Volcano is the opening in the earth as a crust through which the molten rock materials are thrown out slowly or forcefully. Is depending upon the force of eruptions. And second here, a cause of volcanic eruptions is the excessive pressure exerted by the magma and the hot gases on the earth as a crust. The next important point here, the process which is a solid, liquid and gases is a material escape from the earth as interior to its surface known as the volcanism. There is the most important here.
The volcanic material is accumulate is around the opening or hole and taking the force of a cone. The top of the cone has a funnel shaped and depression which is the call to the creator. Creator show the diagram. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है टॉपिक ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिसे वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ज्वालामुखी भूपट्टी में वह जो है छिद्र या द्वार होता है जिसके द्वारा शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख या जल वाष्प तथा अन्य गर्म गैस धीरे धीरे अथवा तेजी से जो है उद्गार के समय निकलते हैं और ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से जो है भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। और इस प्रकार के छिद्र या जो भूपृष्ठ जो है पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ शैल जो है संस्तर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। तो ये ज्वालामुखी ही होते हैं जो कि नीचे जो है धरती में दबे होते हैं और किसी जो है दबाव के कारण जो है ये पृथ्वी से बाहर निकलते हैं और इनका निकलने से कई तरह से जो है तबाही भी होती है, लेकिन इनका निकलना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। अगर हम वोल्केनोस के बारे में जाने यानी ज्वालामुखी के देखें तो डायग्रामेटिक में भी बहुत कुछ आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर ज्वालामुखी शंकु के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि पृथ्वी है, भूपट्टी है और यहाँ नालिकाएं के साथ ऊपर जा रहा है जिसमें ड्राइक्स, शंकु और जो है केटर, सहायक केटर्स और लावा प्रवाह यहाँ दिख रहा होगा, राख की परत जो होगा जमा हो जाता है भूपट्टी पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे हमें लावा के जो है विस्तृत जानकारी मिल रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के जो निचले पार्ट में वहाँ पर ज्वालामुखी जो है काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ये सक्रिय होते हैं और कई दबाव के कारण जो है ये विस्फोट होते हैं। तो इससे ये पता लग सकता है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था कई मायने में देखा जाए तो पहले एक ही ग्रह रहा होगा और उनके विस्फोट के कारण ये जितने दूर गए उतने ठंडा होते गए। क्योंकि कुछ जो है इसका प्रमाण ये भी दर्शाता है कि ये भी पहले आग का गोला ही था, क्योंकि अगर आग के गोले जो है इसके भूपट्टी के नीचे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये भी उसी पार्ट का ही हिस्सा था। तो ये काफ़ी कुछ जो है हमें ज्वालामुखी शंकु समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये उद्गार होते क्या हैं, आखिर उद्गार होता क्या है। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के प्रमाण है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्वालामुखी जो है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है, जिसके कारण से ज्वालामुखी समय समय पर जो है फटती है। पृथ्वी के बाहर ठोस परत के निचले पिघले शैल पदार्थ जिन्हें मैग्मा कहते हैं, जो शैल पदार्थ होते हैं उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है और ये पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। अब इतना अधिक टेम्परेचर होगा तो पिघलना तो जो है जनरली बात है। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ठोस परत के रूप में जो है बदल जाते हैं, अधिक दबाव होते हैं और जब ये मैग्मा छिद्र या दरार द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाता है तब इसे लावा का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैग्मा तथा गैसों जो भूपट्टी से नीचे जमा है वो बाहर आने का सदैव प्रयास करती रहती है। जब ये अपने दाब में भूपट्टी में कोई जो है कमजोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती है तो ये गैस जो है पिघले शैल पदार्थ, शैल कि जो ठोस टुकड़ियाँ, राख आदि का साथ तेजी से धरातल पर फैल जाती है। जब ये ठोस पिघले शैल तथा गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो यही प्रक्रिया जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे साफ हो गया है कि जो गैस पिघले हुए होते हैं कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं। ठीक है, पृथ्वी से निकलने से कोई भी छिद्र उनको दिख जाता है तो उसी छिद्र का जो माध्यम बना लेते हैं और डायरेक्ट जो है वो पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी में आने की प्रक्रिया और फैलने की प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर अगर हम सभी बातों को अगर सारांश के रूप में देखें तो यही बात साफ किया गया है कि ज्वालामुखी भूपट्टी में वह छिद्र होता है जैसे पिघले शैल पदार्थ मध्य अथवा तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। पदार्थों के बाहर निकलने की गति उद्गार की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी उद्गार कितना उनके प्रेशर है इस बात पे जो है डिपेंड करता है और इसी के रिगार्डिंग यानी बाहर निकलता भी है। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और जो है गर्म गैस द्वारा भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। यानी ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और गर्म गैस द्वारा जो है भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शैल व गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसको धरातल पर आती है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे आपको डेफिनेशन भी मिल गया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले गैस या गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, उसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं।
Here the most important chapter, evolution of the landform due to the internal force. There is a types of here or types of volcanoes. There is a most important topic arrived types of volcanoes. The volcanoes are the classified on the basis of the nature of the volcanism, and this basis include the frequency of the eruptions, motion of eruption, and is the fluidity and their manner of which is the volcanic materials escape to be surface of the earth. One, the basis of the frequency of eruptions and volcanoes are three types. There is a first year active, second is a dormant, and third is the excitant. There is the most important three types of volcano here: active, dormant, and the excitant. There is the most important. The volcanoes which they erupt and the frequencies have erupted to the recently are on the action. Currently it's called active volcanoes. What is the active volcanoes here? The active volcanoes which is erupted and the frequently have erupted to the recently are in the action. Currently is called active volcanoes. Important among these is include Stromboli's and Mediterraneans and the Kato is the Indonesia's and the Malayan and the Philippines. And the Malona is the low is the Hawaii Island is the Melbourne Island in India. The volcano which is have not erupted in the recent time is known as the dormant volcano, and they are as such as the sleeping volcanoes. Important among these are the volcanoes of Italy and is the Cotopaxi and South America. That is the most important here. The contraries to this two is, and there is a volcanoes which has not erupted in the historical time, and these are called the extincted volcano. The mount is a Popa of Myanmar and Burma is a Kilimanjaro is Tanzania and important extensions in volcano. It is a note away to the very simple to categories is a volcano as a dominant and extended. For example, there is a Savansis and Krakatoa is become suddenly active after landing is a dormant for the hundreds of years. There is the most important. The also important here are box. They are on the basis of the frequencies, eruptions, and volcanoes and classified in active, dormant, and extended volcanoes. The active volcanoes are erupting currently or have erupted recently. The dormant are those is the volcanoes which have erupted at least once in the human history and are not active now. The excited is the volcanoes are those which have not erupted during to the long human history. The one the basis of the mood of eruptions is the volcanoes are divided into two types. There is the eruption of the volcano divided into two types: center types of volcanoes and fissure types of volcano. Fissure as a types in volcano is the most important. When the eruptions there is a volcanoes take place from an vent to a hole, it's called center types of volcano. What is center type volcano here? When the eruptions in the volcano take place from a vent or a hole, it is called the center types of volcano. Different types of domes are is a conical hills are formed by these types of eruptions and depending on the nature of erupted of materials. The majority of volcanic eruptions in their wall are these types. The other characteristics of their mode of eruptions and that is a marked by violent and explosions due to sudden escape of gases and molten rock through their hole. The resources of the Fusiyama and belong to this group of volcano. There is a more important here. Resources and Fusiyama is belong to this group of volcano. Sometimes the deeps ignited as the cracks devolved due to the earthquake and the faulting their magma start flow through them the craterlets and this mode of eruptions is the call is a fixture and types of eruptions this is a eruptions help in the formation of thick horizontal sheet of lava or low dome shaped is volcano with a boarded base. It is a maybe also formed and what are the identified as a lava plateaus and the lava shaded and Deccan's traps of India is one example of is a fixed types of eruption. And the central types of volcano erupt from to the vent hole and result in formation of the conical hill. And second point important here, fissure types of volcanoes erupt through their
crack and fracture is causing the formation of the plateaus and shelled. On the basis of the fluidity of the lava, there are two types of volcano. There is the most important here on the basis of fluidity of lava. The first here volcano of basic lava and volcanoes of acid lava. That is the most important. Since there is a basis lava is rich in metallics, minerals and has a low melting point. It has a greater fluidity. In these types of eruptions is the lava flow far and the valley currently is with a greater speed and the spread out in the things seated over to the is a large area. Thus, it is a lead to be a formation of the serrate and the lava domes. The serrate of volcano of the Havanis Island is the Pacific Ocean is one of these volcano. That is the most important here. Considered as a basis lava, acid lava is rich in the silica and has a relative to high melting point, and therefore it is a highly viscous as a solidifies liquidly as a quickly. Hence, there is a acid lava is a volcano accustomed to the formation of usually higher land features with the steppers and slope. The acid lava is a cones or a steppers is a slope than the basis lava is a shredded. Here show the diagram of basis lava, shredded and the acid lava cones. There is a most important diagram here. Extensive lava, shredded and the crater and highly fluid lava. The earth is a crust and the secondly acid lava is a cone here. A steeply sloping side is a craters and strictly viscous lava and the earth is crust here. There is a most important diagram shown in this picture. The next point here, distribution of the volcanoes. There is a most important point here arrive. There are about 500 volcanoes in the world. The most of these volcanoes are there found in the three well-defined belt. There are circums is a Pacific belt and mid-world of mountain belt and the African Rift Valley belt. Thus, the volcanoes are closely related to their region of intense folding and faultings. They occur along to the coastal mountain range on the island and it is a mid-oceans. Interior part of the sediment are generally and free from their activity. Most of the activity volcanoes are found in the Pacific region. About 83 active volcanoes are located in the Mediterranean and the region. There is the most important. The circum-Pacific region has two greatest is a concentration of volcanoes. That is why it is called Pacific Rings of Fire. And this is a ring extend along to the Andes and the mountain of South America to the Alaska and from to the Australian island to the Japan and the Philippines, Indonesia to the New Zealand. There is the most important. The mid-world mountain is a belt is occupy their second position with regard to be the number of volcanoes. It is a run from the Alps. There is a Europe to the Asia Minors and there is a crossing through the Himalayan region joined to the circum-Pacific belt. The Africa is a Rift Valley is a region ranked third. Most of the volcanoes are exotic here. The Mount is a Cameroons in this only active is a volcano which is situated in the central West Africa. Here show the most important map here, the distribution of the volcanoes. Here the volcano is here triangle shape. There is a many area even to the upper to the Indian side and there is the most important public oceans and there are other sides of the distribution of volcano here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं जानना बहुत रोचक रहेगा और समझ के लिए भी जरूरी है। कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को जो है वर्गीकृत किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता और ज्वालामुखी पदार्थों के बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आने के ढंग उद्गार की प्राकृतिक अथवा तरलता वर्गीकरणों को प्रमुख आधार माना जाता है और इसी बेस पे जो है इसको वर्गीकरण भी किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसूति ज्वालामुखी और एक होता है विलुप्त ज्वालामुखी। जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है कि सक्रिय और प्रसूति सुप्त और विलुप्त ज्वालामुखी। देखिए वो ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, यानी वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं अथवा वर्तमान में उद्गार
हो रहे हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और आप कहते हैं ये ज्वालामुखी बहुत विस्तृत है और ये कई मानव इंसानों के लिए जो है काफ़ी खतरा का सबब भी है। इस प्रकार प्रमुख ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में स्टोम वैली, इंडोनेशिया में क्राटकोटोआ, फिलिपाइंस और म्यान हवाई द्वीप समूह में जो मेनाओस और भारत में वैरन द्वीप में है। तो ये कहा जा सकता है कि विश्व में हर जगह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है बनी हुई है, यानी एक्टिव जो है वोल्केनोस हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात प्रसुप्ति ज्वालामुखी वे हैं जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए हैं, यानी अभी तक उसका जो है उत्पत्ति नहीं हुआ है। वास्तव में उन्हें सोए हुए ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है, यानी ये प्रसूति ज्वालामुखी जो है अभी सोए हुए हैं, समय आने पर ये भी अपना जो है प्रकोप दिखाएंगे। इटली का जो है वेसुवियस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी प्रमुख प्रसूति ज्वालामुखी है, जो कि एक सोए हुए ज्वालामुखी के जैसा है। इन दो प्रकार के ज्वालामुखी के विपरीत कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जो विलुप्त हो चुके हैं। म्यांमार बर्मा का जो है माउंट पोपा और तंजानिया और किलिमांजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के नाम है, यानी म्यांमार में बर्मा जो है माउंट पोपा और तंजानिया के जो है किलिमांजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। किसी भी ज्वालामुखी को जो है प्रसूति या विलुप्त ज्वालामुखी के प्रकार में बांटना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए वेसुवियस और जो है क्राटकोटोआस हजारों वर्षों तक विलुप्त रहने के बाद उनमें अचानक उद्गार होने लगे और सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। कहते हैं उद्गार की बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया है, सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त। तो ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, जो है ये सक्रिय होंगे, प्रसुप्त होंगे और विलुप्त होंगे। उसके पश्चात सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में हाल वर्षों में उद्गार हो रहे हैं या हुए हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो अभी भी हो रहे हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे हैं जिनमें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ है जरूर, और जो वर्तमान में काफ़ी सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी जो है सक्रिय नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये प्रसुप्ति ज्वालामुखी यानी कभी ये एक्टिव हुआ करते थे। विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब वही होता है कि वे जिनमें लंबे मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो है, आने वाला समय में जो है इसका उद्गार हो सकता है, तो इसे हम विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो, केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी तथा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। इसको 2 के रूप में इसको जो है परिभाषित किया जा रहा है उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी को। जब किसी ज्वालामुखी में उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है तब उसे हम केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं, यानी केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहलाता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के जो है गुंबदकार होते हैं, अथवा ये शंक्वाकार पहाड़ियों का जो निर्माण भी करते हैं, यानी 2 होते हैं, या गुंबदकार हो या शंक्वाकार हो, ये पहाड़ियों का निर्माण भी इन्हीं कारणों से होती है। इन पहाड़ियों का आकार जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं, और इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उद्भेदन की एक अन्य विशेषताएं यह है कि पिघले हुए शैलों एवं गैसों के एक छिद्र या द्वार से निकलने के कारण उद्गार अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। वेसुवियस और प्लेजियमिया इस वर्ग के प्रमुख ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। कभी कभी भूकंप या भ्रमण से जो है भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती है। मैग्मा इन दरारों से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगता है, और इस प्रकार के उद्भेदन को जो है दरारी उद्भेदन कहते हैं। और इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है, और इसे जो है लावा पठार या लावा शीट भी निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इस प्रकार के उद्गार का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें निचोड़ की, तो कहते हैं केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। दरारी प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्भेदन एक दरार से होता है तथा इस प्रकार के उद्गारों से जो है पठारों तथा शीटों का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार
प्रकार के होते हैं, एक क्षारीय लावा के ज्वालामुखी तथा एक होते हैं अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। देखिए, लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी को दो भागों में विभक्त किया गया है, क्षारीय लावा के ज्वालामुखी और अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। यहाँ पर देखा जाए क्षारीय लावा में जो है धात्विक खनिज का अनुपात अधिक होता है, यानी धात्विक खनिज का अनुपात जो होता है क्षारीय लावा में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इनका पिघलना बिंदु नीचे होती है, यानी पिघलने की जो बिंदु होती है काफ़ी नीचे होता है। अंततः क्षारीय लावा अधिक तरल होता है और इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गारों में जो है लावा दूर दूर तक शीघ्र या तेजी से फैल जाता है और इसे लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाता है। इस प्रकार के उद्गारों से जो है शीडों तथा लावा गुंबदों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित शीड ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपको समझना चाहिए। क्षारीय लावा के विपरीत जो है अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए, ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा इसका जो है पिघलने बिंदु अपेक्षित ऊंचा होता है, अंततः यह अत्यधिक गाढ़ा होता है तथा शीघ्र ही जम जाता है। यही कारण है कि अम्लीय लावा ज्वालामुखी जो है सामान्यतः ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करती है और इन भू आकृतियों के ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय लावा शंकु के ढाल क्षारीय लावा और शीडों से अधिक तीव्र होते हैं, जैसे कि चित्र में भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षारीय लावा शीट दिख रहा है और अम्लीय लावा शंकु दिख रहा है। तो ये डायग्राम से भी काफ़ी समझ में आ सकता है कि भूपट्टी में ये जो है विस्तृत लावा परतें दिख रहे हैं और केटर भी है जो अति तरल लावा को जो है रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अगर बी पार्ट में देखिएगा तो अम्लीय लावा शंकु आकार का जो तीव्र ढाल के ऊपर विस्तृत है और इसमें से जो है चिपचिपा रासायनिक लावा निकलती है जो केटर के साथ निकलती है। जो ये डायग्राम भी काफ़ी कुछ बताने के लिए जो है अपने आप में पर्याप्त है। अगर बात हम यहाँ पर देखें क्षारीय लावा के बारे में, तो क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। ये आपको समझना चाहिए कि जो क्षारीय लावा होती है वो अधिक तरल होता है, अंततः शीघ्रता से दूर तक ये फैल जाता है और इसके कारण जो है शीडों का निर्माण होता है। शीडों का निर्माण होने के कारण जो है क्षारीय लावा ही मानी जाती है। अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होते हैं, यानी अम्लीय लावा अधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार के उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ तक बात रखता है। अगली पॉइंट ये दर्शाती है कि ज्वालामुखी का वितरण। देखिए, ज्वालामुखी वितरण किस प्रकार का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। कहते हैं संसार में लगभग जो है 500 ज्वालामुखी प्रेजेंट है, यानी संसार में 500 ज्वालामुखी का जो है केंद्र रूप में देखा गया है और इनमें से अधिकांश 3 निश्चित जो है पेटियों में पाए जाते हैं, यानी अधिकांश 3 निश्चित पेटियों में पाए जाते हैं। ये 3 पेटियां हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी तथा अफ्रीका दरारी घाटी पेटी, यानी ये 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, मध्यवर्ती में और अफ्रीका दरारी घाटी में पाया जाता है। और इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्लन या भ्रंशन पाए जाते हैं। वह तटीय पर्वतीय श्रेणी के साथ द्वीपों तथा महासागरों को आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग इनकी क्रियाओं को जो है सामान्यतः अछूते रहे हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। लगभग 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं। ये भी बहुत विशिष्ट बात है। देखा जाए तो प्रशांत महासागर पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी संकेंद्र है, यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी होने का संकेत मिला है और इससे जो है इसलिए इसे प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं, यानी इसको हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं, अग्नि का बना हुआ। यह वलय दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी के साथ से आरंभ होकर अलास्का तथा जो है अल्यूसियंस द्वीप समूह में जापान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक ये फैली हुई है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि आप मानचित्र से भी इसको जो है भली भांति समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर जो है सक्रिय है। यहाँ पर अगर आपको डॉट लाइन दिख रहा होगा तो ये लाइन जो है सक्रिय ज्वालामुखी को जो है केंद्रित करता है। अगर आपको भारत सेंटर में नक्शा दिख रहा होगा भारत का, तो इसमें भी जो है ऊपर देखिएगा 3 जगह पर जो है ये सक्रिय है
और अदरवाइज अगर दूसरे साइड देखिएगा तो कई मानने में हर जगह आपको जो होगा यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप में दिख रहा होगा। इसके आगे और बढ़िए तो और भी पता लगेगा। अब देखिए कितने जगह पर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, विस्तृत रेखाएं हो, हर जगह जो है ये काफ़ी विस्तृत है। सबसे अधिक तो ये देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साइड है और अमेरिका के साइड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि ज़रूरी भी है। अंटार्कटिका सागर के महासागर के पास में भी बहुत से ज्वालामुखी सक्रिय रूप में फैले हुए हैं। महासागरीय पेड़ी से मिल जाती है और अफ्रीका दरार घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान माना जाता है। यानी डायग्राम में हमने जो देखा वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी थी, क्योंकि यह अफ्रीका दरारी घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान है और इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी विलुप्त प्रकार के ही है, यानी सारे के सारे विलुप्त प्रकार के हैं। केवल माउंट जो है कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित है। देखिए कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। ये कई मानने में इंपॉर्टेंट बात होता है माउंट कैमरून के विषय में, क्योंकि ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन के रूप में होता है कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित है और ये सबसे अच्छा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। कहते हैं अगर हम देखें तो अगर पॉइंट जो हमने पढ़ा है, कहते हैं संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी हैं, वो 3 निश्चित पेटियां हैं। प्रशांत महासागर को जो घेरने वाली पेटी, मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी तथा पूर्वी अफ्रीका दरार घाटी में स्थित है। कहते हैं अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है और इसे हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं। तभी तो कहता हूँ कि ये जो मैं चैप्टर आप लोगों को करवाता हूँ ये कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है और ये हर एक क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को टैग कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे कोई भी इंट्रेंस टेस्ट कर रहे हो, कहते हैं इस सिलेबस से आगे कुछ भी नहीं आता है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सोचना चाहिए। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज अराइव हियर, द अर्थक्वेक। What do you mean to the earthquake here? You know that is a simple word, earthquake. You have probably seen to television news account of disaster is the earthquake and destructions causing by them. And the earthquake is the motion of the ground surface ranging from to the faint tremors to be wild motion capable of shaking a building apart. The earthquake is a form of energy for wave motion and transmitted through their surface layer of earth. There is the most important surface here layers of the earth. All the earthquakes are not be same is the intensities. There is the most important. There is not a same is the intensity. Some of them are very sharp and the others very mild and still other are not even to notice. The major and strong earthquakes are only a few. Through our earth is experience is a many earthquakes every day. However, the frequency of earthquake vary largely from place to place. The network of the seismographics of station all over the world record dozens of earthquakes every day. But the occurrence of sharp to the earthquake is limited to a few regions. The instrumental use of recording to earthquake is known as the seismographics. There are seismographics is the most important. Seismos is a Greek word which means to the earthquake. The point within the earth is a crust where to the earthquake is originate is called a focus. If they also refer to the semi-mixed focus, it generally lies within the depth of the 60 kilometer in the earth crust. The point is vertically above their focus on the earth as a surface known as the epicenter. That is the most important here. The point of vertically above the focus on the earth as a surface is known as the epicenter. The impact of the earthquake is carried from the point of its origin by earthquake wave. The earthquake wave is originating from to the is a focus travel in all direction, but their intensity is their highest at the epicenter, and that is why to the maximum destruction occur at the around the epicenter. There is a figure in the intensities of vibration decreasing as one move away from to the epicenter in all the direction. Here show the focus and epicenter of the earthquake. There is the earth,
and the focus, crust, and earth surface and epicenter. There is the epicenter is the most important here. The epicenter is a shake for the other side of is the earth surface. There are crust and focus only. The most important point here, a earthquake is the motion of ground surface. The ranging from a tentative to the valid motion and capable of the shaking of buildings apart. And the next here, a seismographics is the instrument used by recording of earthquake. Seismographics is the instrument used for the recording of earthquakes, and focus is the point within the earth as a crust where the earthquakes originate. And the epicenter is the point on the earth's surface is vertically above the focus. A cases and effect of the earthquake. There is the next important point here, the case and effect of the earthquakes. The faulting and displacement of the rock stair are the main case of the earthquake. Some example of this type of earthquake are San Francisco as the earthquake of California in 1906, and the Assam earthquake is in 1951. The Bihar earthquake is in 1935. That is the most important earthquake in their world. The second important case lies in the phenomenon of volcanic eruption. The violent volcanic eruptions is put even to the solid rock under to great stress. It is a cause of vibration in the earth is a crust, but these earthquakes are limited to be the area of volcanic activity. It is an important example is the earthquake which continue for the 6th day of preceding the eruption of the Mauna Loa is a volcano of the Hawaii Island is 1868. 1868 there is the most important. The minor earthquake is often is a company or the result of landslide. Is a seepage of the water causing their escapes of the earth of the caverns and the underground is a mines and tunnel. There is a list of the damaging of earthquake. The violent earthquakes are generally very distressing and there may be themselves cause a landslide and dammings of the rivers course and occurrence of the fault and the sometimes in the depression leading to the formation of the lakes. On the earthquakes is often formed to the crack and fissure in the earth as a crust. Is a change the drainage of system on the area as was the witness to the Assam after its 1951. There are 1951 earthquake. The earthquake is also the case of vertical and horizontal displacement of rock stirred along the fault line. They prove most are catastrophic and devastating when they cause a fire and the semi-max sea waves. So the tidal waves is called tsunami, and these waves may be a wash away of coastal cities. Buildings and bridge is a collapse as a causing a death of 1,000 of people. Line of transport communication of electrical transmissions get drifted there after effect to the earthquake and spread of the epidemic like a cholera. That is the most important. The effect of line transport communication of electric transmission get is a disrupted and this effect to the earthquake is spread to the epidemic like a cholera. There is the most important here. The next topic here distributions of the earthquake. Distribution of the earthquake here is the most important topic. The occurrence of earthquake is a phenomenon in almost every part of the world. But there are two well-defined it is a belt where they occur more frequently. And this belt are the circums is a Pacific belt and the mid-world is a mountain belt. The first belt is the circums a Pacific is a comprise the western coastal of the there is a North and South America. And Chinese island groups along the eastern and coastal of Asia such as Japan and Philippines. As is the encircles and the Pacific Oceans from end to the end. It is named as such. The earthquake is the belt are situated within the ring of mountain and volcanoes. It is estimated that is about 68% of earthquakes of the world occur in this belt along. That is the most important here. The second belt is extend from the Alpha with there is extension as the Mediterranean and the causes and the Himalayan region and continue into Indonesia. About 21% of total earthquake of the world originate in this belt. Demanding to 11% occur in the other part of the world.
There is the most important here. The most of the earthquake of the world occur in two belts, namely there is a circumpacific and mid-wall mountain belt. Here show the major the earthquake belt here. There is the most important region to the India is also in this major earthquake belt here. There is the most important map in show in this picture. हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूकंप। देखिए भूकंप क्या है। भूकंप तो बहुत ही साधारण शब्द है जिसको हर एक व्यक्ति को पता होता है कि भूकंप क्या होती है। यानी आपको पता है घर में हम सोए रहते हैं और अचानक हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। सारे सामान जो है कांपने लग जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग घर छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो ये जनरली जो है आए दिन होता ही रहता है। और ये भी जो है ज्योग्राफी भी यही बात बताती है कि भूकंप की प्रक्रिया जो होती है तीव्र होती है, कम तीव्र होती है और बिल्कुल ही शांत भी होती है। तो भूकंप जो है हमेशा प्लेट की खिसकना जारी रहता है। आपने शायद दूरदर्शन के समाचारों में भूकंप से होने वाले विनाश के विषय में सुना भी होगा और ये बहुत बड़ी विनाश की लीला भी रचती है। भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। जनरली लैंग्वेज में देखा जाए तो भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को ही भूकंप कहते हैं। ये हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले होते हैं। यानी काफ़ी हिलाकर रख देने वाले होते हैं। भूकंप और लहरों की गति की जो है ऊर्जा का एक रूप है जो पृथ्वी की धरातलीय परत से जो है संक्षेपित होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सभी भूकंप सामान्य तीव्र वाले नहीं होते हैं। भूकंप जो होते हैं सभी तीव्र वाले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भूकंप बहुत भयंकर भी होते हैं, तो कुछ हल्के होते हैं, तो कुछ शेष, कुछ का पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये भयंकर या अधिक तीव्रता वाले भूकंप गिने चुने होते हैं। यद्यपि हमारी पृथ्वी प्रतिदिन भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बारंबारता में स्थान स्थान बहुत अंतर पाया जाता है। यानी देखा जाए तो भूकंप का केंद्र जो है सदैव बनी रहती है, लेकिन इनका अलग अलग स्थान पर बहुत ही अंतर पाया जाता है। सारे संसार में फैला भूकंप मापी केंद्र का जाल जो है प्रतिदिन दर्जनों भूकंप के आलेखित करता है। लेकिन भूकंप जो है भयंकर भूकंप कुछ ही क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप जो है मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी जो है सेमोग्राफ यंत्र कहते हैं। यानी भूकंप मापी यंत्र को हम सेमोग्राफ कहते हैं और सेमोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है भूकंप। अब देखिए आंतरिक बलों द्वारा जो है भूपृष्ठ के कंपन को हम भूकंप कहते हैं और भूकंप मापी एक यंत्र है जो भूपृष्ठ के कंपन को आलेखित करता है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है। भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां भूकंप आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी भूपृष्ठ में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। सामान्यतः यह केंद्र जो है भूपृष्ठ में जो है 60 किलोमीटर गहराई के आसपास स्थित होती है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थान होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का जो है प्रभाव उसके उद्गम बिंदु से तरंगों द्वारा ले जाया जाता है और ये भूकंपीय तरंगे जो होते हैं भूकंप केंद्र से पैदा होकर सभी दिशाओं की ओर चलती है, लेकिन उनकी तीव्रता जो है अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि अधिकेंद्र के चारों ओर फैले क्षेत्र पर जो है विनाश सर्वाधिक होता है। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र के चारों ओर दूर जाने पर क्रमशः कम होती चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। इस चित्र में आप साफ समझ सकते हो कि जहाँ अधिकेंद्र बना हुआ है वहाँ से कंपन शुरू होती है और ये भूकंप केंद्र जो है उसके आगे जो है ये चलती ही चली जाती है। यानी भूपट्टी के क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ इसकी कंपन जाएगी वहाँ वहाँ जो है ये विनाश लीला खेलेगा। तो इसी तरह से जो है आप डायग्राम के रूप में दिखा सकते हो कि यह भूकंप या भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कैसे दर्शाए जाने की जो प्रावधान है। तो ये डायग्राम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और विस्तृत है। कहते अगर देखा जाए तो कहते भूकंप पृथ्वी के धरातल का कंपन है जो हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले भी हो सकते हैं। कहते भूकंप इतना भयंकर होता है कि शहर के शहर जो है धराशायी हो जाता है। कहते हैं इसका जो है भुज यानी जो है गुजरात में सबसे बड़ा भूकंप आया था, इसका शायद आपको अंदाज़ा हो। कहते भूकंप मापने के लिए जो है भूकंप मापी जो है सीमोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है जिससे हम भूकंप मापते हैं। भूकंप केंद्र जो है भूपृष्ठ में वह बिंदु होता है जहां से भूकंप आरंभ होती है। कहते हैं अधिकेंद्र धरातल पर वह बिंदु होता है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है। तो ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं भूकंप के कारण और प्रभाव। देखिए भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका प्रभाव हो सकता है। भूकंप आने का प्रमुख कारण वलयन
ब्लस्टन तथा जो है शेल सतरों का खिसकना होता है। कहते हैं कैलिफोर्निया के सामने जो है फ्रांसिस्को में जो 1906 तथा असम में 1951 में तथा बिहार में 1935 में आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का उपयुक्त उदाहरण है। तो ये सारे के सारे भूकंप जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि काई मानने में जो है बहुत काफ़ी तबाही किया था। भूकंपों के आने का दूसरा प्रमुख कारण जो होता है ज्वालामुखी उद्भेदन। कहते ज्वालामुखी के भयंकर उद्भेदन में ठोस पदार्थों का अधिक दबाव पड़ता है और इसे जो है भूपृष्ठ पर जो है कंपन पैदा करती है, लेकिन इस प्रकार के भूकंप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। हवाई द्वीप समूह में जेमिनालोस ज्वालामुखी के 1868 में हुए उद्भेदन में जो है पूर्व 6 दिन तक इस क्षेत्र में लगातार आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों का प्रमुख उदाहरण है। कहते हैं हल्के या जो है सीमित प्रभाव वाले भूकंप के आने के कारणों में भूस्खलन, जल के रिसने से भी खानों और सुरंगों और कंदराओं की जो है छतों की सेलों का टूट कर गिरना शामिल होता है। इससे भी भूकंप आती है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ गिरता है तो उससे भी काफ़ी जो है कंपन हो जाती है और इस प्रकार के भूकंप से क्षति बहुत ही कम होती, क्योंकि ये कुछ ही क्षेत्र में जो ये होते हैं, इसलिए इसका जो है क्षति बहुत ही कम होती है। कहते हैं भयंकर भूकंप सामान्यतः अधिक विनाशकारी होती है और इस प्रकार के भूकंप से जो है भूस्खलन, नदियों के मार्गों का जो है रुक जाना तथा बाढ़ के आने की घटनाएं घटित हो जाती है। कभी कभी जो है भूमि के धंस कर जो है जाने से जो है झीलें बन जाती है और भूकंपों का आने से जो है दरारें पड़ जाती है। इसके कारण नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, जैसा कि असम के जो है 1951 में भूकंप के कारण हुआ था। भूकंप के कारण दरारें रेखा के साथ शैल रूप नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। जब इनसे आग लग जाती है या ज्वारीय तरंगें पैदा होती है तब ये भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और इन ज्वारीय तरंगों को जो है सुनामी का नाम भी दिया गया है। इन तरंगों से जो है तटीय नगर बह जाते हैं। भूकंप के आने से मकान व पुल टूट जाते हैं, जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और यातायात, संचार, बिजली के तार की लाइनें टूट जाती है। और भूकंप का अंतिम परिणाम हैजा जैसी बीमारियों का होता है, जहां लाखों के तादाद में जो है जीव जंतु मर जाते हैं और वहां पर हैजा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। भूकंपों का वितरण यहाँ पर हमारा आया है। अगला टॉपिक कहते हैं भूकंप संसार के प्रत्येक भाग में आते हैं, जो जनरल सी बात है, लेकिन 2 पुण्य निश्चित पेटियों में अक्सर जो है ये आते रहते हैं। ये पेटियाँ प्रशांत महासागर को घेरने वाले पेटी तथा मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी में जो है उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, अल्मीशियस तथा एशिया के पूर्वी तट से लगे अन्य द्वीप समूह जैसे जापान तथा फिलीपींस शामिल होते हैं। यह पेटी प्रशांत महासागर के एक छोर से दूसरे छोर तक घेरे हुए हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया है। इस पेटी में आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखियों की श्रृंखला से संबंधित है। ऐसा अनुमान है कि संसार के लगभग 68% भूकंप अकेले इसी पेटी में आते हैं, यानी 68% जो है भूकंप जो है इन्हीं पेटियों में देखने को मिला है। जो है भूकंप प्रभावित दूसरी पेटी जो है एल्प्स पर्वत से आरंभ होकर भूमध्य सागर जो है कैलेशियस, हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते ही रहते हैं। शेष 11% भूकंप संसार के शेष भागों में आते हैं। यहाँ पर ये मानचित्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रमुख भूमक जो है भूकंप क्षेत्र कहाँ कहाँ है। आप देख सकते हो कि भारत के भी कई क्षेत्र जो है भूकंप के अंतर्गत ही आता है। उत्तरी क्षेत्र तो पूरी तरह से भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कई जगह जो है भूकंप का जो है केंद्र बिंदु है और ये कई जगहों पे आती है। प्रशांत सागर के आसपास भी आती है, हिंद महासागर के आसपास भी आती है, अंटार्कटिका सागर के पास कुछ कम है, लेकिन ये प्रमुख जो क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भूकंप का जो है केंद्र कहाँ हो सकते हैं और कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये मानचित्र भी बहुत कुछ बता रही है, भूकंप की हर एक क्षेत्र को दर्शा रही है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये आपके लिए समझने के लिए, सोचने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त थी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको जो है काफ़ी इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना आपने।